the bus. See, in the last video we have seen various components, and now one of the component is very important component is bus. So let's see how to implement a bus, implementation of bus. See, bus is not a simple line, it is not just wires, it is a collection of circuits, collection of logic gates. So it is not just wires. If you were thinking that it is just wires, then you are wrong till now. So let's understand how to implement the bus. So let's say we have four registers A, let's say this is B, this is C, and this is D, and each register is of 4 bits. Okay, so let's say this is A3, A2, A1, A0. Similarly B2, B1, B3, B2, B1 and B0, C3, C2, C1 and C0, and last D3, D2, D1, D0. Let's say these are 4 registers, each of which is 4 bits. In general नॉर्मली 4 बिट्स का रजिस्टर नहीं होता है, आपको भी पता 16 बिट्स का 32 बिट का रजिस्टर होता है, बट यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें 4 बिट्स के हमारे पास 4 रजिस्टर हैं, और किसी भी कंप्यूटर में 4 नहीं होते हैं, ज़्यादा ही रजिस्टर होते हैं. नाउ लेट्स से वी हैव मल्टीप्लेक्सर हियर, we have multiplexers, 4 multiplexers. This is one D0 connected with this. D0 is connected here, C0 is also connected here, B0 is connected here, and A0 is connected here. So this is A0, B0, C0 and D0. Okay, similarly let's say these are having connections like this is, let's say D1, A1, B1, C1, this is A2, B2, C2 and this is, let's say A2, B2, C2 and D2, and last A3, B3, C3 and D3. So what I mean by writing this, because I do not want to make it complex. Actually में ये क्या है, A3 ये ऐसे कनेक्टेड है, ये A2 क्या है, ये ऐसे कनेक्टेड है. मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना के, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, मैंने इसलिए नाम लिख दिए. सो ये D1 लिखने का मतलब ये है कि दिस D1 इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट. ओके, दिस D1 is connected with this point. Similarly, this D2 is connected with this point. Okay, so I hope you are getting this. And see, we are having these multiplexers of what size? This is nothing but 4 cross 1 multiplexer. सो ईच ऑफ देम इज हैविंग वन आउटपुट. आपको पता है नॉर्मली जो मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सर आर हैविंग 2 to the power n cross 1 size. ओके, वेयर n इज इक्वल टू सेलेक्ट लाइन्स. अगर आपको याद नहीं है मल्टीप्लेक्सर, तो मैं आपको जस्ट एक रिकैप दे देता हूं. मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास में लेट्स से ये 4 इनपुट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट ये है, और ये सेलेक्ट लाइन्स हैं S1 S0. अगर हमने यहाँ पे लेट्स से 1 0 चूज किया, सो 1 0 चूज करने का मतलब ये है कि वॉट एवर इज द इनपुट हियर विल बी एट आउटपुट. अगर हमने यहाँ पे लेट्स से 0 0 चूज किया, तो जो भी यहाँ पे होगा वो हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा. So that is 2 to the power 2 into 1, where 2 are the select lines. So that is 4 cross 1 mux. This is input, this is output. Output will remain always 1. अगर आपको फिर भी नहीं याद आ रहा है, तो I believe that we have digital logic videos available in our application, and you can watch that video once. So each of them is having output, and let's say the output of
this is this. These are the outputs. Okay, and we have select lines also. So let's say these are two select lines, because 4 cross 1 will have two select lines. So let's say this is S1, this is S0. Similarly here also. Okay, this is S1, this is S0. now let's understand this. अब यहाँ पे देखो, लेट से मैंने S1 और S0 को 0 0 दिया, तो क्या होगा, जब मैं इसको यहाँ पे 0 और 0 दूंगा तो यहाँ पे 0 और 0 एक्टिवेट, 0 0 0 0 और 0 0, हर जगह 0 0 चला जाएगा चारों मल्टीप्लेक्सर्स में। और उस 0 होने की वजह से अगर ये 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 ये इनपुट्स हैं, 0 0 1 0 1 0 1 1 1 जो मैंने आपको अभी बताया था। एक्चुअली में ये क्या है, ये 0 1 2 3। ओके, तो लेट से ये हमारे पास है, तो होगा ये यहां से ये चीज, यहां से ये चीज, यहां से ये चीज और यहां से ये चीज आउटपुट में आ जाएंगी। तो यहां पे क्या आया D0, यहां पे आउटपुट में क्या आया, ये वाला, ये क्या है D1, यहां से आउटपुट में क्या आया, ये D2 और यहां से आउटपुट में क्या आया, ये D3। दिस इज नथिंग बट द डेटा ऑफ डी रजिस्टर का ये पूरा का पूरा डेटा है। तो अगर हमने सेलेक्ट लाइंस में 0 0 सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट लाइंस क्या है, एक्चुअली में कंट्रोल सिग्नल्स हैं, एक तरह से वो कंट्रोल सिग्नल हैं कि हमें कौन से रजिस्टर के डेटा को एक्टिवेट करना है, आउटपुट में रखना है। ये बस बन गई। अब इस लाइन को आप क्या मान सकते हो, इस लाइन को आप बस मान सकते हो। हमें डेटा ट्रांसफर करना था डी वाले रजिस्टर का, तो हमने सेलेक्ट लाइंस में 0 0 दिया और जो भी डी रजिस्टर में था वो हमारे बस पे आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहां 0 1 रख दूं, तो 0 1 का मतलब क्या है 1, और 1 पे क्या है, देखो यहां पे C3, यहां पे C2, यहां पे C1 और यहां पे C0। तो एक्चुअली C का पूरा पूरा कंटेंट हो गया। तो इसी तरह से ये D का आउटपुट हो गया, ये C का हो गया, ये B का हो गया और 1 1 पे A का हो गया। ठीक है, तो अगर हम ये सेलेक्ट लाइंस देते हैं तो इस हिसाब से हमारे पास रजिस्टर के कंटेंट आउटपुट में आ जाते हैं। ओके, अब यहां पे लेट से यू वांटेड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। लेट से आप क्या चाहते थे कि हमारे पास जो D का आउटपुट आ रहा है, हमने जो बस में रख दिया है, उसको हम लोड करना चाहते हैं लेट से A वाले रजिस्टर में। सो वट एवर इज इन D हैज टू बी ट्रांसफर टू A। हाउ टू डू दैट, आप कुछ नहीं करो, आप क्या करो, लेट से ये आपके पास जो लाइंस आ रही हैं, इन लाइंस को आप यहां पे थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से ले आओ। इन लाइंस को आप इस तरह से ले आओ और इन लाइंस को लाने के बाद आप इसमें ऐसे कनेक्ट कर दो। ये आप कैसे कनेक्ट करो, ये D0 ये वाली है, फिर ये इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया और हर जगह, ऐसा नहीं सिर्फ एक जगह, हर जगह कनेक्ट कर दिया। इनको कनेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इनको कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, आपके पास यहां पे रजिस्टर के अंदर मैंने आपको बताया था क्या चीज होती है, एक होता है लोड LD, एक होता है क्लियर, एक होता है इंक्रीमेंट। तो ये लोड नाम की चीज है। अब लेट से आपने इस लोड को 1 कर दिया और बाकी सब जगह क्या है 0 0 और 0, बाकी सब जगह 0 है। तो जो भी कंटेंट होगा, यहां पे क्या था, यहां पे था D3, यहां पे था D2, यहां पे था D1 और यहां पे था D0। तो जो भी बस में कंटेंट होगा वो इसमें A3 A2 A1 और A0 में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे लोड 1 था और बाकी सब जगह लोड 0 था। तो इसकी वजह से बाकी सारे रजिस्टर क्या होंगे,
वो अभी एक्टिवेटेड नहीं होंगे, बाकी सारे नॉट एक्टिवेटेड होंगे और सिर्फ ए वाला एक्टिवेटेड होगा तो उसके अंदर हमारा डेटा चला जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। ऐसे ही लेट से आपको क्या चाहिए, बी का डेटा आपको सी में डालना था, तो क्या करो, लोड ऑफ सी इज इक्वल टू 1 एंड सेलेक्ट लाइंस S1 S0 हैज टू बी 10। देखो यहां पे B को 10 किया तो क्या होगा, 10 की वजह से ये 2 वाली, ये 2 10 इज व्हाट 2, तो 2 वाली लाइंस सारी एक्टिवेट हो जाएंगी। यहां पे B0, यहाँ पे B1, यहाँ पे B2 और यहाँ पे B3 आ जाएगा और ये डेटा हमारे पास इस वाली बस में यहाँ पे रहेगा। तो सब जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जगह B2 B3 B2 B1 B0 आ जाएगा। और क्योंकि लोड ऑफ C इज 1, तो जब इसको आप 1 कर दोगे तो ये सारा डेटा इनमें चला जाएगा। तो इस तरह से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। अब ये रजिस्टर मैंने ABCD रखे थे, दे कैन बी एक्यूमुलेटर, दे कैन बी डेटा रजिस्टर, दे कैन बी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दिस कैन बी प्रोग्राम काउंटर एंड वेरियस अदर रजिस्टर्स विच वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. Here the important thing is one more important thing where the question will come. Okay, so what questions may come, see here. One is size of multiplexer and another is number of multiplexer. अब यहां पे साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या था, 4x1। क्यों था 4x1? देखो हम हर एक मल्टीप्लेक्सर में इनपुट क्या दे रहे हैं, यहां पे हमने इनपुट दिया, देखो D0 C0 B0 A0। अगर हमारे पास एक और रजिस्टर होता जिसका नाम हम लिखते हैं E0, तो हमें यहां पे E0 रखना पड़ता, वो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर इंक्रीज नहीं करता। अगर हमारे पास यहां पे एक और रजिस्टर होता जिसको हम E बोलते तो E3 E2 E1 E0 होता और इस E0 को हमें यहां कनेक्ट करना होता। दिस मल्टीप्लेक्सर इज नथिंग बट 0th bit of each register. This is nothing but first bit, this is nothing but second bit, this is nothing but third bit। हर एक रजिस्टर की 0th bit, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट और थर्ड बिट को होल्ड कर रहे हैं ये मल्टीप्लेक्सर्स। तो अब हमारे पास ये मल्टीप्लेक्सर क्या बन गया, 5x1। अब आपको पता है कि मल्टीप्लेक्सर्स जो हैं वो 2 की पावर में चलते हैं, दैट इज 2 to the power n x 1, तो ये 5 तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आप इसको क्या करोगे, एक तरह से 8x1 रखोगे जिसमें से 5 लाइंस विल बी यूज्ड एंड 3 विल बी वेस्टेड, बट देन द साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर विल बी 5x1 ओनली, यू विल यूज आउट ऑफ देम 5, so that's what we are writing here. In general it is equivalent to 8x1 or 2 to the power 3x1, where 3 will be select lines. Okay, so size of multiplexer is dependent on number of registers. So size of multiplexer is equal to number of registers cross 1. If number of register is k, then size will be k cross 1. Similarly, what is number of multiplexer? यहां पे हमारे पास 4 मल्टीप्लेक्सर हैं, 1 2 3 and 4। यहां पे 4 मल्टीप्लेक्सर हैं। 5वें मल्टीप्लेक्सर की जरूरत कब होती, जब हमारे पास यहां पे 4th बिट भी होती। 0th बिट ये ले गया, फर्स्ट बिट ये ले गया, सेकंड बिट ये ले गया, थर्ड बिट ये ले गया। अगर हमारे पास यहां पे हर एक रजिस्टर के अंदर 4th बिट होती, जिसको हम यहां बोलते A4, यहां पे हम बोलते, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे हम बोलते A4, यहां पे हम बोलते B4, यहां पे हम बोलते C4 और यहां पे हम बोलते D4। तो अगर हर एक रजिस्टर में एक और बिट एक्स्ट्रा होती तो हमारे पास यहाँ पे एक और मल्टीप्लेक्सर होता जिसमें यहाँ पे आता A4 B4 C4 एंड D4। सो साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज नंबर ऑफ रजिस्टर क्रॉस 1 एंड नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज साइज ऑफ रजिस्टर और नंबर ऑफ बिट्स इन वन रजिस्टर। तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी रजिस्टर में,
that is number of multiplexer, because each bit will go in one register, one multiplexer. And size of multiplexer is number of register cross 1, because each multiplexer uh, because what, see, size of multiplexer is dependent on number of bits, because each multiplexer will have 0th bit, then first bit, then second bit. So that is what we have studied. Okay, so the notes in detail will be given to you, and in the next class we will also use the combination of all these. Now see, आपको मैंने बस की मल्टीप्लेक्शन बस की इंप्लीमेंटेशन सिखा दी है। अब नेक्स्ट टाइम से मैं बस को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सिंपल, ये मेरी बस होगी। दिस इज व्हाट द होल डिज़ाइन लाइक दिस, जिसमें ये रजिस्टर मैं आपको अलग से लिख के दिखा दूंगा, बट ये मल्टीप्लेक्सर से कैसे कनेक्टेड हैं ये सब चीज़ें अब हाइड कर देंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे ये सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के अपने मेन कंप्यूटर को। बिफोर दैट वी हैव टू ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि कौन कौन से रजिस्टर हो सकते हैं, एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, and we have different types of register which we will study in detail and why they are needed. Okay.